Assalamu alaikum, Mariam. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. It's my pleasure to have you on the session. I know an audience, a lot of people know that having this session is to get as much knowledge from people who are recently graduated or doing work for a couple of years, try to understand कि वो किस तरीके से चीजें देख रहे हैं. And we need to understand the market as well. ठीक है. So before we proceed to the pointers, मुझे बताइएगा कि how's Mariam doing? कहाँ पे काम कर रही हैं? How's life? How's everything? And then we'll start the session. So I'm doing good, Alhamdulillah for myself. I'm working at PwC right now as a project management intern और मैं IBA के मेरा ongoing मास्टर्स चल रहा है फिलहाल और उसके अलावा या इट्स just good keeping myself busy, Alhamdulillah. That's good. That's good. So, it's good that you're also pursuing your master's from IBA and you have done your bachelor's from IOBM. Okay. There are so let's start the discussion with education. Okay. A lot of people usually have that for now. कि bachelor's के बाद they usually skip few years and try to give to the corporate world या कहीं पहले वो काम करते हैं and then they started off their masters. ठीक है. What I see is you done your graduation और उसके फौरन अगले साल you enroll in your masters. ठीक है. अब मुझे बताइएगा कुछ सवालात जो है पहला तो ये कि if you done your IOBM से bachelor's ठीक है why didn't you go IOBM से masters? What thought process were you have in your mind to do masters from IBA? Number one. Number second, um, both of the universities are good in Pakistan, specifically in Karachi. But मुझे थोड़ा बताने कि क्या क्या डिफरेंस है लाइक कोई कल्चर शिफ्ट लगा कोई एजुकेशन शिफ्ट लगा कि भाई आईओबीएम अलग है आईबी अलग है ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा एंड देन विल प्रोसीड टू द कॉन्वर्सेशन. Okay, so starting off with the air gap and all, so I had 1 year gap approximately between the degrees. मैंने अपना बैचलर्स खत्म किया था इन 2023 और मार्च में मेरा बैचलर्स खत्म हो गया था उसके बाद आई ज्वाइन कैरियर and there was I was the digital marketing intern at first for 3 months and उसके बाद I was working as the executive. I was promoted to be a executive and I worked there for 10 to 11 months. So that was approximately an year down. उसके बाद मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें अपेरेंटली IBA में एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर हो गया था, तो आई देन वेंट टू IBA. As far as the गियर गैप इज़ कंसर्न्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं। मेरा तो इरादा ये था कि लेना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ मास्टर्स इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल डिग्री as far as I have experienced and as far as I know. Most of the things are based on case studies and real life scenarios. Most of the जो आपकी पढ़ाई है वो डिपेंड करती है आपके वर्क सिचुएशन पे and you can easily correlate to that if you have 1 year of experience minimum. I have colleagues जो यहाँ पे बगैर experience के भी हैं. It's not like it's very compulsory, but it's good to have at least some experience before you enter into the market because then you can correlate with the situations better. Other than that, a connection building बहुत अच्छी हो जाती है masters में आपकी, which is I think an extremely major aspect of what you have to do in masters because the moment bachelor's में people students are after the study, thereafter the course load, hereafter the GPAs and stuff. It all makes sense. It is important. But masters तक आते आते you know the importance of connection because your CV cannot take you places where your connections stand by. तो मार्केट में आपकी कनेक्शन बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है एंड द रीजन टू शिफ्ट फ्रॉम TBM to IBA was the alumni network there. Because I know for a fact that IBA के जो graduates हैं, they are at bigger positions, hierarchy में काफ़ी ऊपर positions पे हैं, especially if you're considering Pakistani है. कॉर्पोरेट में यहाँ पे IBA लम्स वगैरह की बहुत एक चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा लोग उनको हाईली रिगार्ड करते हैं. सो alumni नेटवर्क जो IBA का है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे बहुत सारे हमारे
एमबीए के लिए अभी मेरा 1 साल हुआ है एंड वी हैव हैड लाइक न्यूमरस सेशंस विद इंडस्ट्री लीडर्स, द जैज़ के सीईओ, द एक यूनिलीवर से सेल्स के हायरार्की में सबसे ऊपर लोग। तो इट इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ मल्टीपल थिंग्स। कल्चरल डिफरेंस क्योंकि सीडीएम से इतना ज़्यादा यहाँ पे महसूस नहीं हुआ बिकॉज़ मुझे लगता है कि सीडीएम और आईडीए दोनों ही येस डेफिनिटली आई वुड से शिफ्ट तो है बिकॉज़ द सिस्टम ऑफ आईडीए इज़ न्यू फॉर मी। सीडीएम का सिस्टम से आई वाज़ familiar for 4 years. IDA का system is definitely more, I would say advanced. सीबीएम में आई वाज़ देयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो मुझे वहाँ की आदत बहुत हो गई थी। आईबीए में भी देयर आर गुड पीपल। इट आल्सो नाउ आईबीए आल्सो हैज़ द AACSB accreditation that is a world renowned accreditation other than LUMS. Now IBA also has that. So it is a big deal, yeah. There is shift, there is change, and it is a positive change for sure. That's good. That's good to know that. Um, uh, Starting off, you are a pure Gen Z, right? I okay, You are, okay, like you born after 2000, right? So you are a pure Gen Z. yeah, Okay, so yeah. this is the very first time we are covering a Gen Z, जिसको जो मुझे लगता है कि यार थोड़े से ट्रेड ऑफ मिलीनियल्स वाले हैं आप हर चीज़ सोच समझ के जब हमने इनिशियली हमारी बात हुई थी तब भी हमने ये चीज़ देखी थी एंड आई रियली वांटेड टू डिस्कस एज दैट क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आपके बहुत सारे दोस्त बहुत सारे मेरे ख्याल से आपके सारे दोस्त ही जेंजी होंगे ठीक है और उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है ठीक है व्हाट आई बिलीव कि बहुत कम ऐसे जेंजीज हैं ठीक है जो ये ट्रेड्स रखते हैं जो कि मिलीनियल्स की भी ट्रेड रखते हैं कि हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को समझना है, एवरीथिंग ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट्स द सेम थिंग दैट यू डू व्हेन यू हैव टू डू योर मास्टर्स फ्रॉम आईबी। आपने अपनी पूरी रिसर्च करी कि भाई एलुमनाइज अच्छे हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं देख रहे होते टू बी वेरी ऑनेस्ट और कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होता ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ कि यू आफ्टर योर ग्रेजुएशन ठीक है यू वर्क फॉर थ्री बिग कंपनीज राइट यू वर्क फॉर हबीब ऑयल एंड मिल्स ठीक है यू वर्क फॉर गैरीटेक एंड यू वर्क फॉर पीडब्ल्यूसी नाउ ठीक है और ये तीनों समवॉट बिग एमएनसीज काउंट हो सकती हैं। गेरीटेक आई डोंट थिंक सो वो एमएनसी काउंट होगी बट यस उनके बिजनेस यूनिट दूसरे हैं उनको अगर मिला दें तो आपने तीनों जो हैं वो एमएनसीज में काम करा ठीक है। योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर इन एमएनसी ठीक है। स्टार्टअप वाला करियर नहीं पाथ आपने चूज करा। बीइंग अ मार्केटर व्हाट आई सी इज अ लॉट ऑफ जेंजीज यूजली प्रेफर टू हैव दिस कि यार हम स्टार्टअप में काम करेंगे उसमें थोड़ा सा ईज होता है उसमें थोड़ी चीजें अलग होती हैं ठीक है। मुझे ये बताना कि लेट्स डिस्कस अबाउट कि जब आपने इंटर्नशिप करी अपनी हबीब ऑयल मिल्स में ठीक है फिर आपने ऑलमोस्ट दो ऑलमोस्ट 2 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया गेरीटेक में एंड नाउ यू आर माशाल्लाह आल्सो डूइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटर्न फॉर पीडब्ल्यूसी। इन तीनों जगह पे आपको क्या लगता है कि यार क्या शिफ्ट देखा आपने इंटर्नशिप और आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी आप अपने मास्टर्स से पहले अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लोगे तो जब आप इंशाल्लाह अगले साल जब आप ग्रेजुएट होगे मास्टर्स में तो आप वैसे बहुत सारे लोगों से अच्छे आगे होगे अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं आगे होगे ठीक है आपको पता होगा इंडस्ट्रीज के बारे में ठीक है। हाउ डू यू थिंक कि इन इंटर्नशिप्स ने इन ओवरऑल कॉरपोरेट कल्चर ने आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा सिखाया क्या बुरा सिखाया। आपका क्या माइंडसेट है क्योंकि मैं बहुत सारे जेनजीज को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि यार हमें कॉर्पोरेट में काम नहीं कर रहा अभी भी। बहुत सारे जेनजीज हैं जो कि कॉर्पोरेट को समझ नहीं पा रहे क्योंकि कॉर्पोरेट एक अलग तरीका होता है उसमें काम करने का एक अलग बिहेवियर होता है। वेदर यू आर एन इंटर्न वेदर यू आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे काम करने का एक तरीका है। और 99% केसेस में आपका जो बॉस है आई थिंक 99 के 100% केसेस में आपके जो बॉस हैं वो मिलीनियल्स होंगे या तो उनसे भी बड़े होंगे ठीक है। हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है। हाउ डू यू थिंक इंटर्नशिप हेल्प अ पर्सन टू ग्रो कब करनी चाहिए ज्यादा करने में फायदा है कम करने में फायदा है कौन सी कंपनीज में करनी चाहिए हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। अच्छा सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो द थ्री फर्म्स दैट यू मेंशन
Dedicate में I worked for 1.5 approximate years. PwC में I'm here for only 6 weeks, and at Habib I was there for only 6 weeks. Right. तो Habib जो हो वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आती है. It's in the FMCG sector. तो Dedicate is in the IT sector, and PwC is an accounting firm. हम्म, सो ये तीनों ही बहुत मुख्तलिफ डोमेन है आई थिंक जो मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं. बहुत सारे लोगों को एमएनसीज भी नहीं, आई वुड से जो मार्केटिंग के पर्सनल होते हैं या सेल्स जो होते हैं उनको बहुत शौक होता है कि वो एफएमसीजी सेक्टर में चले जाएं. तो हर किसी की अपनी अपनी एक तो प्रेफरेंसेस होती है. तीनों ही सेक्टर्स में बहुत फर्क है. और फ़र्क किस तरीके से है कि ऑडिटिंग फर्म का एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा. वहाँ ऑडिटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ दे आर एक्चुअली द एसेट ऑफ द कंपनी. तो ऑडिटर्स आर योर मेन प्लेयर्स देयर. उसके बाद जिसे कहते हैं आईटी सेक्टर में जिस तरह से आईटी पर्सनल को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उसी तरह एफएमसीजी मार्केट में सेल्स को बहुत ज़्यादा दी जाती है. तो मार्केटिंग तो हर जगह मार्केटिंग को तो इन तीनों में से कहीं भी तरजीह नहीं दी जा रही, तो व्हाई डू यू डूइंग दोज थिंग्स? marketing. Okay, so I was not in marketing when I was working for Habib. I was a finance intern there. I ओके. was a marketing intern at Geditech. And then I worked in digital marketing at Geditech as well. And I am here as a project intern in PwC. So मेरी जो तो मतलब आपने अभी तक मल्टीपल चीज़ों में जो करा, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इसमें फ़ायदा ये है कि जब आप मास्टर्स में ग्रेजुएट होगे, जब आप मास्टर्स कंप्लीट करोगे, तो उससे पहले आपको इन तीनों चीज़ों का तो पता चल जाएगा. आपके पास एक स्टेबल चीज़ होगी कि भाई ठीक है, मुझे ऑडिट फर्म में जाना है, आईटी इज़ माय थिंग, या मैं मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाऊँ. क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये चीज़ करते नहीं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सेम फील्ड के अंदर, दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि हर बंदे का अलग-अलग होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसको आईटी का शौक है, या कोई कोई बंदा है जिसको एडवर्टाइज़मेंट का शौक है. बिकॉज़ बीबीए इटसेल्फ और एमबीए इटसेल्फ इज़ अ फील्ड जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं. यू कैन गो इन अ बैंक, यू कैन गो इन एड एजेंसीज़, यू कैन गो इन मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है? और ज़रूरी ये होता है कि आप जितना जल्दी इंटर्नशिप्स या जितनी जल्दी आप अपना कोर कॉर्पोरेट कल्चर को देख लेते हैं, उतना जल्दी आपको पता चल जाता है कि यार आप कहाँ पे कल्चर फिट हो, ठीक है? अब आप आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप आईओबीएम में भी अच्छे ग्रेड्स लेते होगे, और आप आईबीए में हो तो आई एम प्रीटी मच श्योर पढ़ने लिखने में तो वैसे भी अच्छे होगे, क्योंकि दिस इज़ द परसेप्शन जैसे जो कि कराची वालों का है कि अगर आईबीए में तो वो पढ़ने लिखने में अच्छा होगा. मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक कि ग्रेड्स रियली मैटर इन द रियल वर्ल्ड? अब ये सवाल एज़ अ मिलेनियल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे जेन ज़ी के तरीके से जवाब देना कि व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? हो सकता है कि मेरा थॉट अलग हो इस बारे में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मैं अपनी चीज़ों को अलग तरीके से देखता हूँ. बट बीइंग एज़ फ्रेशली ग्रेजुएट एंड सून टू बी ग्रेजुएटिंग इन मास्टर्स एज़ वेल, आपको क्या लगता है, ग्रेड्स इज़ अ मिथ या ग्रेड इज़ इम्पोर्टेंट इन अ फील्ड? because the thing with me is that I strongly believe that grades don't matter as a myth. ओके. ठीक है. Because and I have faced this multiple times throughout my career, throughout the journey that I have done. और not that कि मैं कोई बहुत ही experienced हूँ, but देखिए the grades शुरू से ही अगर आपके अच्छे हैं ना, तो it is a very high possibility that you are gonna land into a good university. हुँ, You are gonna land into a good institute. And the good institute, वहाँ पे जब आके रेट अच्छे होते हैं. Okay, तो companies also high. There are some companies certainly जिनका भी एक क्राइटेरिया है कि वो 30 से कम जीपीए वाले बच्चे की फी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. You can only apply if you are 3+ जीपीए वाला बच्चा. हुँ, ग्रेड डोंट मैटर. अमूमन वो लोग कहते हैं जिनकी या तो फिर अपनी 90+5 ही होती है परसेंटेज, हुँ, या तो फिर जिनके पीछे बहुत बड़ा सपोर्टिंग हैंड होता है, जो उनकी 2 जीपीए या 1.8 जीपीए पे भी उनको किसी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा देंगे. तो उनके लिए तो ग्रेड रियली डोंट मैटर. जिनके कनेक्शन
कंपनी के बीओडी में होते हैं, उनके कनेक्शन बहुत आगे आगे तक होते हैं, बट इफ यू रियली डोंट स्टडी, आई दिस आईडीए के टेक के वक्त भी, क्योंकि आईडीए के एडमिशन के लिए यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश को. So if you're not good in studies ना, you cannot clarify the pen. And आईबीए में एडमिशन के वक्त कव्वा या तो फिर लेमैन टर्म्स में जिसको आप बोल रहे हैं पढ़ती वो नहीं चलती. So हम्म, if you really want to out into a good university, you need to have basic understanding of things. You need to have good analytical skills. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपके पीजीपीए के अच्छे हों, क्योंकि एक बेंचमार्क जो है वो हर यूनिवर्सिटी भी मांगती है जिससे वो अपने स्टूडेंट एक्सेप्ट करें. हाँ, एक लेकिन सर्टेन लेकिन परसेंटेज. इसमें इसमें एक छोटी सी चीज ये भी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा. आ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है, ठीक है. अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी क्लास के 40 बच्चे जो है वो 4.0 जीपीए से ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो 2.8 से हो, 3 से हो. ठीक है, एक मिनिमम वो होता है कि इतने तो लाने ही है पास होने के लिए, वरना डिग्री नहीं मिलेगी, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है. बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बेर मिनिमम, जो मैं समझ रहा हूँ आप ये कह रही हो कि बेर मिनिमम आपको कुछ चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है. ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर पढ़े ही आप कुछ कर लें, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं, आपको उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. आप सिर्फ बेयर मिनिमम पे सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज़ अभी भी जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो लोग इंटर्नशिप पे लैंड हुए हैं, जो लोग अच्छी तरह इंटर्नशिप पे लैंड हुए हैं, जिनकी सीजीपीएस अच्छी थी, जो डीन ग्रुप थे, वो बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पर गए हैं. जिन लोगों की सीजीपीएस इतनी अच्छी नहीं थी, वो सिक्योर नहीं कर पाए कोई अच्छी पोज़ीशन, उनको इंटर्नशिप सर्चिंग फेज़ में भी मसला हुआ. एंड एमबीए का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एमबीए का सबसे डायरेक्ट कंपटीशन होता है बैचलर्स वाले बच्चे, क्योंकि आप इंटर्नशिप पे चले जाओ, आप मैनेजमेंट के ही रोल पे चले जाओ, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन होगा बैचलर्स के जो बच्चे होते हैं. फिर उस पर बहुत सारा रोल इन लोगों का भी आ जाता है जिनके, मैंने जैसे आपको बताया कि जिनके फादर कहीं लगे हुए हैं, बीओटी है किसी कंपनी के, या तो फिर जिनकी ऑलरेडी कहीं बहुत अच्छी जान पहचान है और जिनके बहुत बेहतर कनेक्शन है. बिकॉज़ बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जिनकी इंटरनली भी हायरिंग हो रही होती है. जैसे आपके पास कहीं से चीज़ें आ गई, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर ने चीज़ें दे दी, आपने इनको हायर करना है, आपने यहाँ से लेना ही है, ये स्टूडेंट आएगा ही आएगा. लेकिन ये और फिर तो बाद में उन बच्चों का चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा होता है. आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है, ये बहुत पहले से ऐसा है, ठीक है. और अपने पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करना, अगर आपके कनेक्शंस हैं तो उसको यूज़ करने के लिए ही कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है. आई एम प्रीटी मच श्योर अभी नहीं, अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद आप भी अपने कनेक्शंस की मदद से अपने काम को आसानी से करा रहे होंगे, ठीक है. वो किसी भी सिनेरियो में हो, ऐसा हो कि आपको जॉब लगवानी है, आपको किसी और चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि भाई आप, अगर आप बिलो एवरेज रहेंगे या एवरेज रहेंगे तो आप फिर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी होंगे तब भी आपको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना. बिल्कुल. ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने, ये मेन जो सवाल था वो इसलिए था क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि लोगों के दिमाग में ना ये आईबीए, आईवीएस, लम्स, ये इस तरीके से बना हुआ है कि अगर यहाँ चले जाओगे ना तो लाइफ बिल्कुल सेट है. ऐसे या तो काम ही नहीं करना पड़ता, वहां पे भी मेहनत करनी पड़ती होगी. आई एम प्रीटी मच श्योर ऐसा तो नहीं है ना कि आप, किसी ने देखा भाई मरियम अब्बास ओके फाइन आईबीए में पढ़ी, इंटरव्यू के बगैर सीवी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लो. आई एम प्रीटी मच श्योर आपने भी इंटरव्यू दिया होगा. तो दैट्स अ गुड थिंग कि ग्रेड डू मैटर्स, ये तो समझ में आ गया, ठीक है. अब मुझे ये बताइएगा कि यू बीइंग वेरी मच, आई वोंट से लकी, यू आई एम प्रीटी मच श्योर आपने उसके लिए मेहनत करी होगी. यू डन योर प्रायर एक्सपीरियंस इन बिग कंपनीज, अ लॉट ऑफ पीपल सफर दैट, ठीक है. मुझे थोड़ा सा ये बताना कि आपने अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, क्योंकि आई एम प्रीटी मश्योर इन 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 तीनों कंपनीज में आपने अपनी आउटरीच रखी होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों कंपनी से आपको कॉल आई हो और उनको पता हो कि भाई थैंक यू सो मच मरियम अब्बास, आपने बैचलर्स कर लिया, आप हमारे यहाँ के इंटर्नशिप करें. या अगर मैं गेटक की बात करूँ तो वहाँ पे आपको खुद से कॉल आई हो. लेकिन आपने आउटरीच कैसे करी, आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि यार आपको क्या लगता है, ग्रेजुएशन के वक्त, मास्टर्स के वक्त, मास्टर्स से पहले या ग्रेजुएशन से पहले क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से आपने इन तीन कंपनीज को रीच आउट करा?
क्योंकि हर बंदा वैसे ही करता होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर जब आप बैचलर्स में थी, आपकी पूरी क्लास में जितने बच्चे होंगे, उन सब ने ही मेहनत करी होगी, ठीक है? बट आपको क्या लगता है कि यार कुछ स्टेप्स ऐसे आपको दिमाग में लगता हो कि यार ये करने से ना आई थिंक आपको जॉब अच्छी तरीके से मिल सकती है, ग्रेड्स अच्छे लाने होते हैं, लिंक्डइन पे जाके फॉरन किसको रीच आउट करना है, क्योंकि क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर इन सबके जो इंटर्नशिप प्रोग्राम या एमटीओ प्रोग्राम्स हैं, वो बड़े सिलेक्टेड टाइम पर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता कि कभी भी इंटर्नशिप खुली हुई होती है, तो यू नीड टू डबल चेक दैट कि जब आप ग्रेजुएट होंगे या जब आपका समर ब्रेक होगा, तो आप किन किन कंपनियों में अप्लाई करेंगे, उससे पहले आप एक थॉट प्रोसेस बना के रखते हैं कि भाई जनवरी में मैंने इन इन चीज़ों को सोचना है। आपका क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से आपने लैंड करी थी जॉब? अच्छा, so the thing about LinkedIn is कि बहुत सारे लोग इसको नॉन सीरियसली लेते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल नहीं बनी हुई, और अगर बनी हुई है तो वो उसको अपडेट ही देते हैं। मेरे साथ एक मतलब ये हुआ था कि बीच में कुछ वक्त के लिए मेरा लिंक्डइन हैक हो गया था, हम्म। और वो हैक हुआ था इंटर्नशिप, अभी जो इंटर्नशिप पीरियड है उसके 3, आई थिंक 1 हफ्ते पहले। हम्म। और मैं उस वक़्त परेशान थी क्योंकि मुझे उस वक़्त अप्लाई करना था इंटर्नशिप के लिए। नॉट दैट हम्म। कि मेरी डिग्री के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि एमबीए जब आप करते हैं आईडीएस से, तो जिनका बिज़नेस बैकग्राउंड होता है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है इंटर्नशिप। हम्म। अभी तक का ये है, आगे शायद चेंज हो जाए। लेकिन मुझे अप्लाई करना था क्योंकि फिर अगर कल को कोई मेरी चीज़ देखता है और उनको पता चलता है कि इसने सेमेस्टर ब्रेक में ना तो कोई कोर्स सिखाया, ना कुछ किया, तो इट वोंट बी अ गुड इम्प्रेशन। तो you have to keep it big, you have to keep it। बट उस वक़्त जब मेरा लिंक्डइन हैक हो गया था, तो देयर वर न्यूमरस आई थिंक कनेक्शन जो कि मेरे पास पता नहीं कहाँ के आ गए थे। मैंने जब लॉगिन किया था मेरी प्रोफाइल पिक्चर और सबसे ज़्यादा अफ़सोस मुझे टिल डेट जो है वो ये है कि मेरे जितने सर्टिफ़िकेट्स थे वो डिलीट हो गए थे। तो और वो सर्टिफ़िकेट्स थे जिनकी वज़ह से मेरी प्रोफ़ाइल पे बहुत रीच आती थी, और वो मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट भी किया था आस्किंग अबाउट दोज़ सर्टिफ़िकेट, आस्किंग अबाउट कि मतलब इज़ इट फ्री? इज़ इट यू नो इसके लिए कहाँ साइन अप करना पड़ेगा? व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स? तो द थिंग अबाउट लिंक्डइन इज़ एंड द थिंग अबाउट, देखिए बैचलर हर कोई करता है, ठीक है? हम्म। मास्टर्स भी हर कोई कर रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है ना वो ये है कि आपकी सॉफ्ट स्किल कितनी डेवलप होती है। हम्म। बेसिक चीज़ों, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, पावर बीआई का डैशबोर्ड हो गया, ओरेकल हो गया, सैप वगैरह चीज़ें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, इट विल बूस्ट अप योर सीवी। बहुत इम्प्रेसिव सीवी हो जाती है आपकी, बिकॉज़ इवन इंटरनल जो भी हायरिंग हो रही होती है उसमें अमूमन मेरे सामने ही अमूमन बैठ के लोग कह रहे होते हैं कि आई नो दिस कनेक्शन एंड दिस कनेक्शन इज़ वेरी गुड इन डेटा एनालिटिक्स, या तो फिर दे आर वेरी गुड इन पावर बीआई। तो वो अपने कनेक्शन को आगे जो बढ़ाते हैं ना, देखिए किसी के कनेक्शन के थ्रू भी जो है ना आप ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाते। अगर आपको कोई चीज़ आती होगी ना तो अगले की बात की वेटेज होती है। क्योंकि जो भी आपकी हायरार्की करवा रहे हैं, कल को आपको कोई चीज़ नहीं आती होगी तो फिर उनकी भी इमेज इन द ऑर्गनाइज़ेशन खराब होती है। तो वो भी आपका वर्ड ऑफ माउथ तभी आगे पहुँच पाएँगे जब उनको पता होगा कि आपको कोई चीज़ आती है। तो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी ज़्यादा सर्टिफ़िकेट अपने कलेक्ट कर सकते हैं आप करें, एंड डू अ साइड हसल। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई डोंट थिंक दैट मुश्किल नाउअडेज़ स्पेशली फॉर बैचलर्स स्टूडेंट्स। दिन का 1 घंटा, 2 घंटा आप अपनी मनी जनरेशन में या तो फिर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। बिकॉज़ दीज़ आर द थिंग्स जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं सिखा रही। ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, पता नहीं क्यों। पावर बीआई का डैशबोर्ड इज़ द बेसिक थिंग जो आपको हर यूनिवर्सिटी में सिखाने चाहिए, वो नहीं है। एक्सेल की वर्कशॉप्स होनी चाहिए हर जगह, जो कि अच्छा होती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो ये एक फ्लॉ है हमारे यहाँ। जब मेरी बात हुई थी तो इट्स नॉट ओनली माय सीवी, मेरे कनेक्शंस ने जो मुझे आगे बढ़ाया था, क्योंकि मैंने लिटरली अप्लाई किया था टू द प्रोग्राम, जो उनके लिंक्स आते थे। मैंने उसके अलावा भी जिस कंपनीज़ में अप्लाई किया था, मैंने उधर अपने कनेक्शन रखे हुए थे कि मैंने सीवी डाल दी है, एंड एक बात आगे बढ़े तो प्लीज़ पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी, इफ अगर मेरी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है। एंड दे डिड। उन्होंने एक गुड वर्ड दिया था, बिकॉज़ देयर आर मेनी सीरीज़ और सिलेक्ट सिर्फ़ कुछ बच्चों को करना होता है। तो जिन बच्चों का गुड वर्ड चला जाता है,
उनकी बेसिक से करेक्शन हो जाती है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुछ स्किल सेट की बात थी वरना फिर इंटर्नशिप से एक रोल मिल जाना भी हर किसी की बात जब वो कहानी नहीं होती जितना जल्दी आप बिल्कुल। लर्न कर लेंगे उतना जल्दी आपको चीज आ जाएगी आई थिंक दैट आल्सो काउंट तो या You're right, बिल्कुल। The main reason of asking this is um, not numbers is important always। आपको एक कंबाइंड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जिसमें आप हर जगह से अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हो। ठीक है, वो आपकी लिंक्डइन हो, वो आपकी कनेक्शन बिल्डिंग हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्कोर्स आपको आगे लेके जाएँ, कभी-कभार आपका टैलेंट, अब कभी-कभार आपके सॉफ्ट स्किल्स भी आपको आगे लेके जा रहे होते हैं। और जैसा आपने भी कहा कि बीबी और एमबीए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर ही बंदा कर रहा है। तो आपको आपको अपने आप को आउटरीच कैसे करवाना है, आप कैसे उन लोगों में आउटशाइन करेंगे कि भाई ठीक है, मैंने बीबी मेरे बीबीए में और बाकी लोगों के बीबीए में ये फ़र्क है कि मैं एक्स-वाई-ज़ेड सर्टिफिकेशन और अटेस्टेशन कर, मतलब जो भी आपके कोर्सेज वगैरह वो करे हुए हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा महारत हासिल है उन चीज़ों में। ठीक है, दैट कम्स टू अ पॉइंट कि बीइंग अ जेंजी, ठीक है, एवरी जेंजी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई सी। मतलब हर बंदे के दिमाग में ये बात तो है कि यार कुछ अपना करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रेड है, मैं ये इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कहता। लेकिन मैं इसको ये समझता हूँ कि हर इंसान को पहले कुछ टाइम इंडस्ट्री के अंदर लगाना चाहिए, इंडस्ट्री को समझना चाहिए। अज्यूमिंग कि अगर आपके दिमाग में भी ये लॉजिक है कि भाई ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं 10 15 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं अपना कुछ स्टार्ट करूंगी या जब भी आप स्टार्ट करेंगी, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग करियर पाथवे होता है उसमें आपको बहुत ज़रूरत होता है कि आप बेस से चीज़ें सीखें। आपको पता हो कि यार उस कंडीशन में या उस जगह पे कैसे सोचा जाता है, क्योंकि ताकि जब आप बड़ी पोजीशन पे पहुंचे तो भी आपको काम कराना आता हो लोगों से। बिकॉज यू नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल, और आपको ये तो सोचना होता है कि हर पोजीशन पे काम कैसे करना है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक यार, साइड हसल कुछ है दिमाग में बीइंग अ जेनजी या नहीं, कि अभी कॉर्पोरेट देखा है तो कॉर्पोरेट में कंटिन्यू करना है, कि नहीं भाई कॉर्पोरेट पे टाइम लगाएंगे पहले और फिर देखेंगे। मैं इससे ये जानना चाह रहा हूँ कि अ, आप, मुझे आपसे बात करके ये लग रहा है कि आप ना प्लान्ड बच्ची हो, मतलब आपको पता है कि मैंने ना हर चीज को प्लान्ड रखना है, कि कहीं कहीं भी अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो तो मुझे पता हो कि यार मैं इन चीजों को सही कर सकती हूँ। चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है आपने, आपको पता है। आई आई वाज अमेज्ड टू नो जब मैं आपकी लिंक्डइन को गो थ्रू कर रहा था, बहुत सारे जेनज़ीज़ जो बैचलर्स हो रहे होते हैं, बैचलर्स होने के बाद उनको पता चलता है कि भई लिंक्डइन भी बनानी है या लिंक्डइन का भी कुछ करना है। बट यू आर गुड विद दैट, आपको ये प चीज़ें पता थी। तो मुझे बताना कि साइड हसल का कोई है प्लान, ठीक है? या 9 टू 5 इज़ इनफ फॉर यू? साइड हसल एज़ इन अपना कुछ तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। ज़हन में है, दिल भी है, इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर एंड आगे अगर मेरे पास इतना टाइम हुआ और मुझे इतनी समझ आ गई चीज़ों की देन ज़रूर। बट आई आई डू हैव अ साइड हसल राइट नाउ आई थिंक बिकॉज़ अभी जब मैंने वेटेटेक से अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड किया था जब वहाँ पे मेरी जॉब एंड हो गई थी तो उसके बाद बिकॉज़ माय मैनेजर वाज़ he is very kind person and he was very kind enough to offer me a part-time role because he was like you are an in-house person and you know how the thing works here at Geditech और यहाँ के content का आपको अंदाजा है and you're obviously एक पुराना employee होता है उसको पता होता है कंपनी के do's and don'ts का तो उनको ये एक तरह से मतलब उन्होंने सॉर्ट ऑफ हेल्प की कि मेरी उनसे अच्छी बातचीत थी एंड फिर वही बात है कनेक्शन का कितने जैसे कनेक्शंस अपने रखेंगे एंड स्पेशली विद योर मैनेजर्स एंड ऑल तो हुँ, उतना ही आप स्किल रह जाइए तो मेरी जो भी 9 to 5 आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप एज़ वेल एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड विद Geditech as a freelance writer. So I'm doing that also. And I really don't think so that only 9 to 5 is enough in Pakistan nowadays, and especially when you're starting. Even bachelor's maybe I I have seen my friends कि वो
अपना काम-वाम करके अपनी क्लासेस लेके फ़ौरन अपने ऑफ़िस दौड़ जाती थीं या तो फिर वो ऑनलाइन काम करना शुरू कर देती थीं। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो if you're paying less की फीस for university, you have devices and universities are kind enough to allow you to work even inside campus. तो ये सिर्फ एक आई थिंक ये बहाना होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि होता सबसे है, बस आपके अंदर विलिंगनेस नहीं होती है। क्योंकि अगर हर अगर हर बंदे मेरी को कोई हर मैं नहीं कर सकती हूँ। हर बंदा ना वैसे सोचता भी नहीं है। आपने जैसे बोला ना कि डूइंग अ जॉब, डूइंग अ साइड हसल या अपनी ग्रोथ के लिए ना आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई सी, देयर इज़ अ वेरी लैक ऑफ डिसिप्लिन इन जेन ज़ीज़। वो मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? हाँ भाई, कोई चीज़ देखी, मोटिवेट हो गए, बट मोटिवेशन से ना आप चीज़ें बदल नहीं सकते। चीज़ें बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। फिर वो रनिंग योर ओन बिज़नेस हो या वो यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद, आई एम प्रीटी मच श्योर जो जो बच्चियाँ, जो बच्चे यूनिवर्सिटी के टाइम में काम कर रहे होते होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर देते होंगे कि यार दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकते क्योंकि हमें ऑफ़िस जाना है। दोस्तों के साथ यहाँ कहीं मूवी नहीं देखने जा सकते क्योंकि हमें कोई सेल करनी है या जो भी बिज़नेस अपना रन करना है। एंड इट स्टार्टेड लाइक दैट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यू जस्ट अभी यू सेड कि यार अभी आपने ही बोला तो मेरे दिमाग में मेरे सवाल आया कि मेंटोरशिप, ठीक है? व्हाट आई सी, लाइफ़ के अंदर सही मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बीइंग अ जेन ज़ी, एक फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई ना कोई बड़ा कज़न, आपका कोई ना कोई भाई, आपका कोई ना कोई बहन मिलेनियल होगा, जिससे आप पूछ सकते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ, क्या मैं नहीं करूँ? हम मिलेनियल्स में मसला ये था कि जब हम कर रहे थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव डन माय बैचलर्स इन एनिमेशन, दैट टाइम माय फादर एंड माय मदर डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो मुझे उनको पहले समझाना पड़ा था कि मैं करना क्या चाहता हूँ और ये करने से होगा क्या। हुँ, टिल द डेट अगर मैं अभी मेरे अब्बा को कहीं पे मुझे इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो कहते हैं आ जाएं और आप बता दें बेटा आप क्या करते हैं। ही नोज कि आई डू समथिंग ऑन कंप्यूटर्स, आई डू बिलबोर्ड्स, आई डू थिंग्स लाइक दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें पता नहीं था। बट नाउ माशाल्लाह से things are changing after 2020. There are a lot of online platforms are coming, products are coming in Pakistan, and now अब लोगों को पता है कि यार क्या चीज किस तरीके, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है? Who was your mentor? How do you think that a what a mentor can do in your life? ठीक है? Having a mentor is good or bad? अच्छा, so having a mentor, in my opinion, is always a good thing because it's not like, I was having this अच्छा, conversation एक the छोटी other सी day एक with, सॉरी टू कट यू ऑफ, इसके अंदर एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। मेंटोर होता कौन है? मतलब आप किसको मेंटोर कंसिडर करते हो? हर बड़ा इंसान जो आपसे एज में बड़ा है वो मेंटोर कंसिडर करते हो, या जिस फील्ड में आपको ग्रो करना है उस फील्ड वाले को मेंटोर ग्रो वैसे में करते हो? मैं उसको मेंटोर कंसिडर करती हूँ जो मैं पाथ फॉलो कर रही हूँ, जो पहले उस चीज़ से गुजर चुके हैं हम्म, और जिनका उसमें तजुर्बा हो। और ठीक है। जो मुझे ये बता सकते हैं कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन-सी लाइन बेहतर है, कहाँ जाना बेहतर है। तो वो लोग मेरे नज़र में मेंटोर हैं। एंड having a mentor actually solves a lot of problems for you. And even if it doesn't, it it warns you about हम्म, what's ahead. So I was having this conversation the other day with a colleague of mine, हम्म, PwC का ही, and he mentioned that mentor या गाइड ना में ही होना चाहिए क्योंकि आप मिस्टेक करते हो तो आप मिस्टेक से सीखते हो। मेरे ख्याल से आप मेंटर या गाइड होते हुए भी मिस्टेक करोगे, लाज़मी करोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मिस्टेक करो ही नहीं। मैंने खुद भी बहुत की है। तो मिस्टेक आपने वैसे भी करनी है और ऐसे भी करनी है। इट्स गुड कि आप कोई इतनी बड़ी मिस्टेक ना कर बैठो कि आप बाद में बहुत रिग्रेट करें। मेरे लिए मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। तो उन लोगों को बिज़नेस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था अनटिल एंड अनलेस अ, जिस अ, जिस जनरेशन की से मैं हूँ, उसी जनरेशन से ये बिज़नेस डील करने का रुझान ज़्यादा पहले ही हुआ। इससे पहले नहीं था।
because most of our family is doctors and engineers. So ये नहीं किसी नहीं, की ऐसा कहाँ है? अभी 2015 में तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बीबीए प्रोड्यूस करे थे। आई स्टिल मैं in आई my family, हाँ मतलब मैं in मेरा my मेरा अगला सवाल family, मेरा अगला सवाल यही है कि आपने तो ये फैसला करा ही क्यों भाई? मतलब अम्मा अब्बा अगर डॉक्टर हैं तो आई एम प्रेटी मश्योर आपको तो बहुत प्रेशर मिला होगा कि भाई डॉक्टर ही बन जाओ, क्लिनिक संभाल लो, ऑफिस में हमारे साथ रह लो। मुझे इतना प्रेशर नहीं फेस करना पड़ा. इनफैक्ट माय पेरेंट्स वर वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ डूइंग व्हाटएवर यू वांट because they are already in the field, they are working professional, they have colleagues, their colleagues have kids. तो उन सबसे जब when I think to talk to people, आप जब लोगों के साथ उठते बैठते हैं स्पेशली दुनिया में, तो आपको बहुत सारा जहन खुलता है और फिर आप ईजी हो जाते हैं. So my parents were very open to the idea of taking my field, and I was also a pre-med student previously हम्म, in intermediate. But my parents were very open to this idea, and they were very much included in my process. उन्होंने खुद बिजनेस को पढ़ना शुरू किया था, फाइनेंस वगैरह, मार्केटिंग वगैरह को उनको जब आइडिया हुआ था. तो पहले मेरी फैमिली में मोस्टली आगा खान और जिना और लियाकत निकल रहे होते थे. अब कहीं उन्होंने लेवल पीएनजी की भी बात होने लगी है. तो गुड है, गुड। इसलिए पेरेंट्स ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो अ, फिर जेनजी हो या मिलेनियल हो, आप बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप फोकस कर सकते हैं, आपको पता होता है कि यार देयर इज समवन हु इज हेयर फॉर गाइड मी, नॉट ओनली पेइंग माय फीस, आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि मैं किन चीज़ों से गुजर रही हूँ। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग होती है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट आईबीए, इट्स नॉट अबाउट आईओबीएम, इट्स नॉट अबाउट एकरा यूनिवर्सिटी। हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली अगर मैं कराची की बात करूं तो कॉलेज तक आप बहुत स्पेसिफिकली क्या कह लें, वॉच आउट एनवायरनमेंट में हो। तो हर माँ बाप को पता होता है कि भाई हमारा बेटा या बेटी एक्स वाई जी काम कर रहा है, और सबको पता होता है कि मैं कुछ भी करूंगी तो मेरे अम्मा अब्बा देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको पहली मर्तबा थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, आपको पता चलता है ओके फाइन, नाउ आई एम गोइंग अलोन, नाउ आई हैव टू डू थिंग्स अलोन, ठीक है? फिर आपको क्लासेस में पता चलता है कि ठीक है लीडरशिप कैसे है। मतलब मैं अगर लीड कर रही हूँ ग्रुप तो मैं कुछ बोलूंगी, और फिर आपको अच्छा लगता है कि अगर आप वो चीज़ लेके चलते हो, ठीक है? अब एक और सवाल ये है कि आपने कॉर्पोरेट में काम करा, आपको कॉर्पोरेट का पता है, ठीक है? और मार्केट में या लिंक्डइन पर लोग कह रहे होते हैं जॉब्स नहीं है, ठीक है? आपको क्या लगता है एज अ जेंजी, एज अ करंट फील्ड में, करंट अभी आप क्या कहते हैं, आप लोग हॉट टॉपिक हो इन्वायरमेंट में, जेंजी इन्वायरमेंट में जा रहे हो, जॉब पे कर रहे हो, ये सारी चीजें, तो आप लोग के हिसाब से, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम है, हमें को मैं कहता हूँ ऐसे मिलीनियल मिलीनियल कह रहे होते हैं भाई जेंजी ये कर रहा है और उसको इस तरीके से काम करना है और वर्क एथिक्स नहीं है। अभी तक जितना मैंने आपको देखा है, मुझे ऐसा लगता है अगर हर जेंजी आप जैसा है तो फिर मतलब मिलीनियल्स को सीखना चाहिए, या तो फिर आप वो एक वाहिद अनार हो जो सबसे अलग हो, ठीक है? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट भी तो देखनी है ना। प्रॉब्लम्स की बात तो हर कोई कर रहे हैं कि भाई ठीक है जॉब्स हैं या जॉब नहीं है। हम्म, उससे पूछना बहुत जरूरी है जो वाकई में ये चीज देख रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जॉब्स हैं, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है? पाकिस्तान में मेन कोर मसला क्या आ रहा है? क्योंकि जो ग्रेजुएट हैं वो तो हर साल हो रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि यार कहाँ मिसकंसेप्शन है? एजुकेशन सिस्टम में मसला लग रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम में मसला लग रहा है, लोगों के अंदर अपने मसले लग रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके वक्त में आईबी और मेरे वक्त में आईबी ज्यादा कोई बदली नहीं होगी। आई एम प्रीटी श्योर के कैरिकुलम अभी भी वैसा ही होगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा पेपर से आप कंप्यूटर पे आ गए होंगे, लेकिन मार्केटिंग के रूल्स तो वही होंगे ना, मार्केटिंग करने का तरीका वैसे ही होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सेवन जो जो भी प्रिंसिपल है आपके मार्केटिंग के वो चेंज करके आज उन्होंने कुछ और कर दिए होंगे। मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि जॉब मार्केट आजकल कैसी है? आ, गलत है तो क्या करना चाहिए, सही है तो लोग क्या गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा बताओ मुझे। अच्छा, तो जॉब मार्केट शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो डिप है. ऐसा नहीं है कि, और अगर जॉब है भी तो मुझे लगता है किसी की सिक्योर नहीं है. हम्म, जॉब होना इज अनदर थिंग.
जॉब सिक्योर होना इज अनदर थिंग। हम्म। और जॉब होना इज अ बिग डील इन पाकिस्तान। मुझे लगता है कि अगर बिकॉज मेरा जहाँ तक का तजुर्बा रहा है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंटोर्स हैं जो मेरी फैमिली में हैं, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए हमेशा से। पेरेंट्स वगैरह तो इस चीज में नहीं है, बट मेरे मामू हैं, मेरे पापा के जो दोस्त हैं जो जिनको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं, तो उनसे जो वो मुझे अमूमन कहते रहते हैं कि जो वो सीएफएस हैं उनसे जाके मिलो और वो तुम्हें फील्ड के बारे में गाइड कर देंगे, फाइनेंस रिलेटेड बता देंगे। तो जॉब वगैरह जो है ना, मुझे लगता है कंप्लीटली देख रहा हूँ कि आपकी कहाँ बातचीत अच्छी है। क्योंकि वही बात है कि हर जगह तो डिग्री नहीं लेके जाएगी, हर जगह हम्म। तो ये भी नहीं होगा कि आप लोग जैसे कहते हैं बहुत अच्छी जीपीएफ पे जॉब मिल जाएगी। हम्म। कनेक्शन होना तो बहुत जरूरी है। दूसरा, जॉब मार्केट ओवरऑल इतनी कोई अच्छी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि द थिंग इज कि पीपल आर रेडी टू सेटल फॉर द बेयर मिनिमम। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द बेयर मिनिमम, तो आईबीए की एक पॉलिसी है कि आईबीए खुद कहता है, एंड ये हुआ है इंटर्नशिप पे, ये हुआ है कि मुझे जहाँ जहाँ के बहुत सारी जगहों पे तो मुझे एक ही कॉल आई है जहाँ आईबीए ने मेरी चीजें खुद फॉरवर्ड की है, जहाँ मैंने खुद अप्लाई भी नहीं किया था। हम्म। तो आईबीए का करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपकी चीजें खुद आगे कर देता है कि आप ज्यादा टाइम तक बेरोजगार रह ही नहीं सकते आईबीए के होते। और हम्म। ये सीबीएम में होता था, क्योंकि वो भी हर जगह, हर बैंक में, हर पॉसिबल एमएनसी या तो फिर पेट्रोलियम कंपनी वगैरह में भी आपकी चीजें किताबें फॉरवर्ड करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, हमें यहाँ से हायर कराना है, हमारा बच्चा ज्यादा टाइम पर जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो आईबीए सीबीएम में ये मैंने चीज नोटिस की है। बाकी जो बहुत बड़ा चंक है बच्चों का, जो इकरा हो गई या तो फिर इवन वेबिक हो गई या जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है, इनसे क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है। लेकिन आईजीएस सीबीएन नाम वेबिक ये बहुत छोटा का चंक है। मोस्टली जो लोग हैं वो जॉबलेस भी हैं, उनके पास शायद नहीं है इनकी, क्योंकि और अगर हैं भी तो वो एक तरीके से है कि वो एवरेज वेज रेट पर हायरिंग हो रही रहती है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि इनके पास जॉब नहीं है, इनको आप थोड़ा सा भी ऑफर करोगे ये लोग आ जाएंगे। हम्म। उन लोगों का बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ होता है। उन हम्म। लोगों को सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। बीस एनी यूनिवर्सिटी लोग बहुत टेक्निकल होते हैं, बट देयर इज संडे सेलिंग themselves. So the corporates in Pakistan are not very gloomy and all, because the corporates in Pakistan, if you talk about the bigger companies like TNG, ZK, Unilever, these don't even make 5% of the corporate of Pakistan. बट यू नो These व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम, ठीक है? The real problem is you go to any of your student, any of your friend, and ask them big five or big three companies of big three MNCs in Pakistan. आप जो नाम बोल रहे हो, जो नाम हम सुन रहे हैं, रैकेट, पीएनजी, यूनिलीवर, आपको लगता है इसके अलावा और कोई कंपनीज एमएनसीज पाकिस्तान में नहीं है? द प्रॉब्लम बहुत है हैं। द प्रॉब्लम इज कि आपकी बात एक हद तक ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये समझाऊं कि आपकी कनेक्शन बिल्डिंग यहाँ पर है, आपका आपके कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, और आपकी डिग्री अभी यहाँ पर है, राइट? क्योंकि अज्यूम करते हैं एक साल में आईबीए लम्स कितना बच्चा ग्रेजुएट कर लेता होगा? 10,000, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में 1 लाख कंपनियां होंगी या 1 लाख से भी ज्यादा कंपनीज हैं, ठीक है। आपको ये चीज समझनी पड़ती है कि यस, ये वो वाली बात है जो आपने कही थी, जब आप पढ़ते हो और आप अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी आपको ये प्रिविलेज देती है कि आपकी सीवीज खुद आगे फॉरवर्ड होती हैं। क्योंकि कि हर बच्चे को देखें, ये इस तरीके से है कि हो सकता है मुझे आज जो चीजें पता आपको इसलिए नहीं पता हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल से वो चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी एक काम करती है, यूनिवर्सिटी उन कंपनीज में भी भेज देगी जैसा आपने बताया जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और बाद में आपको कॉल आती है, उसके बाद आप गूगल करते हो, आपको पता चलता है अच्छा ये भी कंपनी है। अच्छा, शेल पेट्रोलियम, पीएसओ पेट्रोलियम के अलावा भी पेट्रोलियम कंपनीज है पाकिस्तान में। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका फैंसी नेम नहीं है, जो बहुत मशहूर नहीं है, ठीक है। एफएमसीजी भी यूनिलीवर और पीएनजी से आगे चल के भी बहुत सारी एफएमसीजी होंगी, ठीक है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बेयर मिनिमम क्या है,
ठीक है? जैसे भी आपने बोला ना कि बेयर मिनिमम की डेफिनेशन बहुत अलग है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव फ्रेंड्स हु स्टडी फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी जो अपने अंडर आईबीए और आईबीएस और लम्स को हायर करते हैं। मेरे पास ऐसे दोस्त भी हैं जो लम्स में, ठीक है, और वो आज ब्रांड मैनेजर या सीनियर ब्रांड डायरेक्टर लगे हुए कहीं ना कहीं के। और मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी कंपनीज अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी कुछ नहीं कर रहे, और मेरे पास वो लोग भी हैं जो बुरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के बहुत कुछ कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल आपके हाथ में है। आप उसको किस तरीके से ग्रो करते हो, ठीक है? किसी को भी खबर नहीं होगी कि आपका फाइनेंशियल या डेटा एनालिस्ट बहुत अच्छा है आपका, आप डेटा अच्छे तरीके से देख सकते हो, या आपको बताना पड़ता है, या आपको आपके काम से जाहिर करना पड़ता है। सो आपकी बात कहीं ना कहीं, आई आई सेकंड दैट, यस, पाकिस्तान में जॉब मार्केट इज नॉट दैट गुड, ठीक है, बट ईदर यू नीड टू डिसाइड कि अगर आपको इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में ग्रो करना है, तो एक्सक्यूजेस से अच्छा ये है कि आप उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि 2015 या 2014 होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब बीबीए और एमबीए जो आप लोग कर रहे हो, वो बहुत स्टेबल कर रहे हो, आप लोग को पता है कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है? 2015 2016 में आई बिलीव कि एक बीबीए की लहर चली थी और पाकिस्तान का हर बंदा बीबीए कर रहा था। मतलब अगर उसकी सांस चल रही है, उसके नसों में खून दौड़ रहा है, तो वो बीबीए करेगा, ये वाला हिसाब था, ठीक है? 2029 में, फिर आप 2019 में आपको अंदाजा हुआ कि ये जो इतने लोग प्रोड्यूस हो गए, इनको नौकरियां कहाँ मिलेंगी, ठीक है? अच्छा, दूसरी ये चीज भी होती है कि ग्रोथ प्लान को समझने का भी तरीका है, सही है? किसी के लिए ग्रोथ का मतलब है पैसा, किसी के लिए ग्रोथ का मतलब है पावर, किसी के लिए ग्रोथ का मतलब है सस्टेनेबिलिटी, किसी के लिए ग्रोथ का मतलब है कि मुझे बाहर जाना है। अब ये चार जो मेन टॉपिक्स हैं, ये हर बंदे के लिए अलग अलग है, ठीक है? हो सकता है कि अम, आपको बाहर ना जाना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं जाना, मतलब जरूरी थोड़ी आप किसी को गन पॉइंट पर रख के तो बाहर नहीं भेज सकते। तो ग्रोथ की डेफिनेशन अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी ग्रोथ फिर वहीं तक रह जाती है, क्योंकि ग्रोथ बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और एक वर्टिकल ग्रोथ है। पाकिस्तान में जेनजीज को अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, ठीक है, उनको ना वर्टिकल ग्रोथ चाहिए। आज मैं एक एसोसिएट, कल मैं एग्जीक्यूटिव, उसके पास जूनियर, सीनियर, लीड, मैनेजर, वीपी। लेकिन बहुत सारी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल भी है। आपको ये देखना होता है कि आपने इसी फील्ड के अंदर रहते हुए क्या क्या चीजें सीखी हैं, ठीक है? तो आई 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 वाज नॉट अमेज्ड टू नो, बट मुझे लग रहा था कि यही जवाब होगा, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऐसे ही सारे लोग भी सोचते होंगे कि जॉब मार्केट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तभी इस तरीके से होता है। लेट्स गेट बैक टू अनदर पॉइंट ऑफ इज, व्हाई डिडंट यू गो फॉर योर मास्टर्स बार? आर यू समवन हु थॉट ऑफ इट देन डिडंट गो? आर यू समवन जो कि जाना ही नहीं है? क्या लगता है आपको, कोई फायदा होता है? हाउ वाज योर ओवरऑल स्टोरी? The thing about me being an MBA was कि MBA सबसे ज़्यादा फन मेरे लिए करना था फिर CDM, बिकॉज CDM से अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करना नहीं निकल रहा है हुआ एंड यू डिड योर बैक पे फ्रॉम देयर, देन इट्स वेरी इजी कि आप अपनी जॉब के साथ साथ अपना MBA कर लें, पुरसुकून तरीके से आपका MBA हो जाएगा। मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी अप्रिशिएट कि यार इतना डिटेल में ना, मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा कि अगर आपने अपना वो नहीं निकलवाया, और आप यू आर वेरी मच स्टेबल इन दैट, मतलब माशाल्लाह से, बीइंग अ 23 इयर्स आप इतने फाइनेंशियल स्टेबल हो कि हाँ भाई ठीक है, मैंने वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं निकलवाया, मैं इसी से कर लूंगी, तो मुझे 2 साल में भी मिल जाएगा, मेरे पैसे ही बच। बहाना है, पैसे निकलवाना है, मैं भूल गई हूँ। अच्छा, मेरे पास मेरे पास में वक़्त नहीं निकल रहा, वरना मुझे निकलवाना है। अच्छा, लेकिन मैंने वो अपने लिए मैंने निकलवाया इस तरह से नहीं था, और उसके मैं ट्रेड आई थी, मैं ये लिए निकलवाया था कि किसके आईडी का एडमिशन कन्फर्म नहीं था। अभी किसके आईडी में वो एडमिशन गेन किया थी, मैं चुपचाप अपना एमबीए वहाँ से कर रही थी। मुझे इसको नहीं था। मतलब बट मैंने अपने यू ऑलवेज हैव अ प्लान बी, ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान के साथ चल रहे थे, यू ऑलवेज हैव अ प्लान बी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली। कॉन्टेजेंसी प्लान था कि खुदा ना खास्ता अगर
आईबीए के तारे ना हाँ, सही हुए तो तो देखो, सीडीएम से एक डिपॉजिट भी नहीं निकलवाऊंगी, बोलूंगी कि डिपॉजिट में फीस काट लें आप और आगे मेरा मास्टर्स कंटिन्यू कर लें। हाँ, अब डिपॉजिट तो ज्यादा सीबीएम का, आई थिंक इट्स 15K और समथिंग, और वो बस इसलिए होता है कि आपको अपना रीटेस्ट ना देना पड़े, आपको एडमिशन के लिए फिर से अपेयर ना होना पड़े। बट आप बट अपना जैसे ईमेल घुमाओ और आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। बट मुझे मुझे एक बात बताओ कि सो देयर आर पीपल हु आर डूइंग देयर मास्टर्स बाहर से, दे आर पीपल हु आर डूइंग देयर बैचलर्स बाहर से, ठीक है? आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं ऐसे ही समझना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो एक मतलब मुझे मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको अपना सर्कल से बाहर जाना पड़ता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर इट्स अ सेइंग, इफ यू आर डूइंग गुड इन योर सर्कल, ठीक है, अगर आप उसमें टॉप कर रही हैं तो आप गलत सर्कल में हैं। आपको सीख ही नहीं रहे होंगे ना, आप अगर हर चीज़ अच्छा कर रहे हैं तो आप सीख क्या रहे हैं? आप उसके लिए आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है, ठीक है? हाउ डू यू लाइक डू यू थिंक यू थॉट ऑफ इट कि यार मैं एक सेकंड के लिए मास्टर्स बाहर से कर लूं, करना चाहिए या नहीं? The thing about doing masters बाहर से is if you have the means, आप जरूर जाओ, हम्म। इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे नए लोगों से बातचीत होती है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी मम्मा अमूमन मुझे ये कहती हैं कि हर किसी को एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक दफ़ा हॉस्टल लाइफ ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, यार ताकि आपकी, वो अपने मुझे लगता है आपकी अम्मी को तो फिर तमगा इम्तियाज देना चाहिए, क्योंकि अम्माएं और अपनी बेटी को हॉस्टल लाइफ में भेज रही हैं। मुझे लगता है वो तो उनका दूर। ये कहना है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हो उससे, क्योंकि आपको हर चीज़ करने का तरीका आ जाता है। आई हैव फ्रेंड्स जो आईबीए के गर्ल्स हॉस्टल में हैं, तो यू वुडंट बिलीव कि वो हर अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, बिकॉज़ अमूमन ये होता है कि जब आप अपने घर में रह रहे होते हो, आप अपने होम कंट्री में रह रहे हो, बहुत बहुत फ़र्क है। आप अपने होम कंट्री में, आपको यहाँ के रूल्स का पता है, आपको पता है यहाँ के लोगों को टैकल किस तरीके से करने हैं। सेम गोज़ विद योर ओन होम। But when you move somewhere out of your comfort zone, जहाँ आपने पढ़ाई खुद करनी है, आपने जॉब खुद देखनी है, आपने अपना खाना खुद बनाना है, आपने अपने कपड़े खुद प्रेस करने हैं, you have literally no one. Then you actually has this thing कि नहीं, I am literally on my own. There is no one who is gonna cook for me. There is no one जो मुझे बैठ के जो है डंडे के जोर पे पढ़ाएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी सीधी आगे करेगा। तो आपको खुद जो धक्के खाने पड़ते हैं ना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव द मीन्स, आप ज़रूर एमबीए बाहर से करें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं, आप ज़रूर करें। मेरा ये इरादा था कि मैं मतलब आई लुक्ड इनटू ऑप्शंस, बट दोज़ वर वेरी कॉस्टली फॉर मी पर्सनली, तो मैं इस वजह से मैंने एमबीए बाहर से नहीं किया। और दूसरा ये है कि एमबीए दूसरा आपके वो आईओबीएम के वो पैसे रहते थे ना, आप बाहर से कर नहीं सकते, तो आपको वो लेना नहीं। फनी पार्ट, बट यस यू आर राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट, योर हाँ, मदर इज एग्जैक्टली राइट कि जब आप बेसिकली बाहर से या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, दैट वाज द रियल आइडिया, क्योंकि इट्स नॉट बैड, बट लड़कियों का स्ट्रक्चर या औरत का जो स्ट्रक्चर इस्लाम में भी है वो ये है कि उसको हमेशा सेव रखा जाता है। आपके सराउंडिंग में आपका आपका बैकअप होता है, आपके फादर होते हैं, आपके ब्रदर होते हैं, आपके आगे चल के वो आपके हस्बैंड होते हैं, ठीक है? तो यू हैव सिक्योर्ड, आपको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं कोई चीज़ ऊपर नीचे फकअप करती हूँ तो मेरे पास ये बैकअप है, ये संभाल लेंगे, मेरे माई डैड विल अंडरस्टैंड, माई ब्रदर और माई हस्बैंड विल अंडरस्टैंड। बट व्हेन यू आर इन द मार्केट, यू नीड टू रियलाइज के पाकिस्तान में मार्केट में लड़की लड़के को कहा जाता है कि वो बराबर है, वो बराबर नहीं है, ठीक है? ने कहा भी नहीं बहुत था, चलो मतलब कहा चलो भी ये नहीं मुझे मुझे तो लगता है, मुझे मुझे लगता था कि कहा जाता है, लेकिन अब एक जेनजी कह रही है कि कहा नहीं जाता, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ती है कि आप जिस मार्केट के अंदर है उस मार्केट में ग्रोथ किस तरीके से। ऐसा हुँ, हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली में आपको सपोर्ट मिले किसी चीज के लिए, लेकिन आप इंटरनेशनली या कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ये नहीं सोच सकते कि यार मैं लड़की हूं तो मुझे प्रिविलेज मिलना चाहिए, ठीक है? या वो लड़का है तो उसको प्रिविलेज मिलना चाहिए।
कभी-कभार हाँ, ठीक है, वुमेन कार्ड होता है और आप उससे यूज़ कर रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी ग्रोथ खुद देखनी है ना, आपको बहुत मर्तबा अकेले होते हैं, आपको देखना होता है कि आप किस तरीके से एंड आई थिंक अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल के फिर वो अकेले रहना हो, मास्टर्स करना हो, वो किसी भी तरीके से चैलेंज करना हो अपने आप को, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे बताओ कि द लास्ट थिंग दैट आई हैव इन माइंड राइट नाउ, आपको क्या लगता है कि बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि स्टूडेंट को? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर अभी इस 2015 में बहुत सारे बच्चे नए जेनज़ीज़ है, आई थिंक उसको अब कुछ और कहते हैं, जेन अल्फा या पता नहीं क्या कहते हैं। एबीसीडी चल रहा है, पता नहीं कौन-कौन से अब आ रहे हैं। तो वो जो भी अब आएँगे, आपको क्या लगता है मरियम अदनान के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर रखना चाहिए दिमाग में? सिर्फ़ यूनिवर्सिटी को लाइव बनानी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, आउटरीच बढ़ानी चाहिए? क्या आपको लगता है इम्पोर्टेंट है कि आपको आगे जाके फ़ायदा होगा उसका? दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई मुझे वांट टू डिस्कस फ्रॉम यू। मुझे पर्सनली लगता है कि आपको सब ट्राई करना चाहिए। आपको दो आपके ही दोस्त भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए, बिकॉज़ दीज़ आर द पीपल जो आपके साथ आगे कॉर्पोरेट में भी जाएँगे। दीज़ आर द पीपल जो आगे जाके एचआर के हेड भी लग जाएँगे, प्रोफेशनल भी लग जाएँगे। आपको ज़रूरत होगी कल को खुदा ना खास्ता कोविड जैसी कोई सिचुएशन फिर से आ गई, आपकी जॉब चली गई, आपके दोस्त आपको मदद करेंगे। आपको दोस्तों को प्रायोरिटाइज़ भी करना चाहिए। आपको उनके साथ आउटिंग पे भी जाना चाहिए। मेरी एक मार्केटिंग की टीचर है एट आईबीए एंड वो हमेशा हमें एक बात समझाती हैं कि अगर आपकी जीपीए 3 से कम है तो आपको अपनी कोई फ़िक्र नहीं है और अगर आपकी 3.5 से ज़्यादा है या 3.8 समथिंग टच कर रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी कोई लाइफ़ नहीं है। और वो शायद कहीं न कहीं ठीक भी है क्योंकि यू आई आई यू रियली कैन नॉट आई रियली वांटेड टू नो कि उनकी सीजीपीए क्या थी? According to her, it wasn't that good, and she traveled globally. She went like to international councils and all, एंड दैट्स and दैट she तो planned. शी इज़ राइट एग्ज़ैक्टली क्योंकि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने जैसा अभी कहा ना कि यू शुड ऑलवेज़ हैव अ कंटीजेंसी प्लान कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ नहीं चली तो। क्योंकि नॉट एवरीथिंग हाँ, इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हो, ठीक है, वही बैचलर्स कर लेंगे, जॉब लग जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2 महीने में जॉब लग जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको साल भर मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके जॉब लगती है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि बैकअप होना चाहिए, दूसरा पहला तो ये कहेंगे कि आप जो भी कर रहे हो ना, व्हाई आई मेंशन साइड हसल कि आपके पास थोड़ी बहुत इनकम जनरेट ना किसी भी सूरत नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर कोई 9 to 5 भी मिल गई तो आपकी कोई और मसरूफियत ही नहीं है। क्योंकि जो आप साइड हसल पहले से कैरी करते आ रहे हो, बी इट ऑनलाइन, बी इट पार्ट टाइम, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी फारिग हैं। हाँ, वो चीज़ आप अपनी टीवी पे शोकेस नहीं करो अगर आपको पसंद नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल सेंट्रिक में भी जॉब कर रहे हैं, जो कभी ना कहीं से मनी जनरेट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं आपको मतलब इस इकोनॉमी में आप बगैर एक एक सॉलिड इनकम के नहीं पढ़ सकते। If you are a good fit for a call center, even if it's a night shift, you're very deprived of a job. Get it. देयर इज़ नो शेम। बहुत सारे लोग अमूमन जो है उनको ये लगता है कि अगर आप अपनी ही बैचलर्स वाली यूनिवर्सिटी से मार्कशीट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत शेमफुल है, ये नहीं लेना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं। आप आप अपने टास्क प्रायोरिटाइज़ कर लो। पहला आपने बाहर जाना है, बाहर कहाँ जाना है? यूएस नहीं हो पाया तो यूके, यूके नहीं हो पाया तो फिर आप जर्मनी या तो फिर आप किसी भी गल्फ कंट्री चलेगा। ये प्रायोरिटी लिस्ट सेट हो गई। अगर बाहर नहीं जा सकते तो आप लोकली अच्छी यूनिवर्सिटी देख लो। लोकली नहीं हो सकता तो हमारे एक्चुअली मैं कहूँ यू आर नॉट रेडी टू सेटल। यू वांट द बेस्ट एंड देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म, बट यू आल्सो हैव टू नो कि हर दफा इट्स नॉट 100%. And if you are stuck up on that 100%, then you will lose the 80%, 70%, 90% as well. So you cannot do that because then your life will stop because it's not always 100%. So if you're not getting a job at PwC, you will definitely get a job at some good bank. You will definitely get a job at some, startup.
एंड प्रोबेबली आपको वहाँ की ज़्यादा लर्निंग मिल जाएगी। बड़ी एमएनसीज़ वगैरह में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, इतना ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास नहीं होती। स्टार्टअप्स वगैरह में अथॉरिटी ज़्यादा होती है, सीखने को ज़्यादा मिल जाता। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं यूएस नहीं जा पा रही तो फिर मैं बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँगी। इट्स नॉट द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ माय करियर। I have often, if I'm not a good fit for one place, I'm definitely a good fit for something, someplace other than that. So why not go for that? मतलब बहुत ज़्यादा स्टक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट योर पढ़ाई। बहुत सारे लोगों को जब व्हेन आई वाज़ थिंकिंग ऑफ दिस कि मैंने सीबीएम में ही अपना मास्टर्स कंटिन्यू कर लूँगी, इट्स नो बिग डील। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बस वहाँ के करते रहिए, बैचलर्स कहाँ के लिए रहता है और सीबीएम से बेहतर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये कहना कि सीबीएम से बेहतर इतनी सारी, मैंने बैचलर्स वहाँ के किया है, तो मुझे वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। अगर वो मेरा आईबीए में नहीं होता, मैं अल्टीमेटली वहाँ जा रही होती। या तो फिर मैं उसकी जगह को बुरा-भला बोल के चली जाऊँ, या तो फिर मैं उस जगह की एक अच्छी इमेज रख के चली जाऊँ, वैसा नहीं है। एंड इफ आई एम रियली दैट रिजिड कि मैंने कहीं नीचे उतरना ही नहीं है, सो दैट्स द प्रॉब्लम विद मी, बिकॉज़ देन आई एम स्टक अप, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो बस ये है कि हर वक़्त उस 100% के पीछे आप बाकी का 90, 80, 70 कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। अगर नहीं मिल रहा तो इट्स ओके। बिल्कुल ही पॉइंट ज़ीरो पे नहीं आके बैठ जाओ, बिकॉज़ दैट्स नॉट गोना गेट यू एनीवेयर। परफेक्ट यार, मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स एन एडवाइस, बट अगर कुछ ना बन सके आप तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट that's my I think 80 84 or 80, sorry, I think you were my 92 या 93 गेस्ट। ठीक है, आई एम प्रिटी मच श्योर कि यार इतना 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 अच्छा जेनजी से मैंने नहीं मिला अभी तक, इतना प्लान जेनजी से नहीं मिला। इट्स वेरी ठीक है, मतलब आपको लगता होगा कि आप अपने हिसाब से प्लान नहीं हो, लेकिन आपने एक सबसे अच्छी ट्रेड आपकी ये जो मैं सीखा हूँ आज, वो ये है कि देयर शुड ऑलवेज अ प्लान बी। आपकी खुशी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती, हो सकता है कि आईबीए नहीं तो सीबीएम, और सीबीएम नहीं तो कोई और सही। ठीक है, और हमेशा लाइफ को लाइफ की तरह देखना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि एक प्लान आपका, एक प्लान अल्लाह ताला का है। हो सकता है यू आर डूइंग समथिंग राइट नाउ और आगे चल के वो उस तरीके से हो। I'm pretty much sure we have discussed a lot of good things, and thank you so much, Mariam. Thank you so much for your time. I still remember on the initial call when I told you कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, और आपने कहा कि आई एम जस्ट अ 23-year-old kid, मैं क्या ही ऐड करूँगी, बट you had a lot of good things, and thank you so much for giving me an opportunity to interview you, to have this session. I'm pretty much sure a lot of people will learn from it, and if there's anything, any people want to have a certain guidance and they want to reach out to you, and I'm pretty much sure you will be open for them on LinkedIn, and you will be happy to guide them as well. So thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. थैंक यू सो मच, थैंक